मेरे गाड़ी
Hi, good afternoon, everyone. I see that just we have four people right now, including me. I'll wait for a couple of minutes and then we can begin. Good afternoon, Davidara. It Yeah. seems there is some problem in a few connections. I don't know. I can see few things on the group. Okay. So I'll wait for a couple of minutes and then we can start. Yeah. But I'll we check were the able group to as well. join very Yeah. conveniently. There were no issues as such. Commercial Zoom ID. I don't know. You were able to join, right? Yeah, absolutely, without any issues. So let me see if I need to change any settings for the meeting. Normally, this is the setting everyone can join usually. Yeah. And there was no issue, and it didn't ask any such things as well. So anyways, what we'll do is I'll try to change the settings if required. I'll pause and I'll share my screen. Visible? Yes. Okay. So what I'm going to do is I'll tell you where I got these indices from. I went to NSE India. So I went to NSE India site. There you have market data and here you have indices. So here you get a full list of indices. I only stuck to the sectoral indices. Sector indices and some from other indices also. Like I'll tell you where I got the other. So here thematic indices is also there. Commodities, CPSE, consumption, infrastructure. So these also I picked up. And then I put them into this Sharekhan. In Sharekhan, you have this facility. You can create a market watch. And here you can add stocks or indices. So here when I say add script, typically what happens when I say Nifty, I get everything that starts with Nifty in the beginning. So here I just have to scroll and identify what I want to add. So I go on ticking on it and within a few minutes my entire list of indices is ready. And uske baad फिर if I want that in Excel, I can just do a right click and export to Excel. So export to Excel करने के बाद I got it in Excel. So this is how I also got it in Excel. So I've got monthly trend, weekly trend, daily trend, and notes. So that is what I typically do when I begin. So I will start with this Nifty. We look at monthly, the trend is very strong up. And what is interesting is this sideways movement was broken. Here there was a kind of sideways movement. This was broken. The price was trailing at this level for some time, and then it took a breakout. So this gives me a lot of confidence that this breakout is here to stay. Another thing some people do is this relative strength index. I don't use it often, but that is an additional confirmation people see. If people see negative divergence here, then people say ki acha, this can fall from here. But here there is no negative divergence also. यहाँ पे तो जैसे प्राइस ऊपर जा रही है द हायर लोज आर आल्सो हैपनिंग, हायर हाइज आर आल्सो हैपनिंग. सो देयर इज नो नेगेटिव डाइवर्जेंस आल्सो. हो सकता है कि इलेक्शन के आसपास यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट होगा, वेटिंग फॉर डायरेक्शन. मे बी थोड़ा सा करेक्शन होके यहाँ तक आ जाएगा 20 मूविंग एवरेज तक. एंड दिस इज द मंथली एवरेज. सो मंथली मूविंग एवरेज में दिस इज क्वाइट पावरफुल इफ यू सी. Most of the times it is supported. Now this was an exceptional case. March 2020 was an exceptional case, which we can let go. But otherwise, you will see it is taking support at 20 moving average and monthly also. Now, monthly trend is up. If we see weekly trend, strong up. Here, there is a little bit of negative divergence, which is why I said there may be a correction that can happen near election. So it could come down to this level also. This was the previous stop. So it might come down to this level, pre-election or post-election, depending on how the results come out.
तो यहाँ पे करेक्शन होगा, लेकिन इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस. Delhi is too close by, so Delhi में भी the reason I'm saying it may fall further is ये ट्रेंड लाइन था, ये तोड़ दिया है और यहाँ से सेलिंग सपोर्ट आया है लास्ट डे ऑफ मार्च. तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिरे, यहाँ पे आके वीकली जो है ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट वहां पे आके सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए. तो फिर भी 22,326 में क्लोज हुआ था. इट मे कम डाउन टू 2259, 20259. दैट्स द लोएस्ट आई कैन एक्सपेक्ट इट टू कम. ये बैंड से, फ्रॉम दिस बैंड आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अप अगेन. ऑफ कोर्स ये सारे हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं. लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस, बट दिस इज द assumption आई एम गोइंग विथ. So in the notes, I will say monthly up, weekly up, and daily sideways, negative divergence, negative RSI divergence. I am saying it is sideways because in the daily chart, if you see, it has made a lower low and equal high. So that is why I am saying it is a sideways kind of thing. या तो यहाँ पे देखो तो हायर हाई किया है और यहाँ पे हायर लो दिया है, तो फिर भी वी कैन कंसिडर इट साइडवेज. So here I will put this in notes, negative divergence. तो हर महीने में शुरू में मैं ये एनालिसिस करता हूँ. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई डू दिस एनालिसिस. उस बेसिस पे देन आई लुक एट विच सेक्टर्स आर लाइकली टू बी अप, विच सेक्टर्स आर लाइकली टू बी डाउन. जो भी सेक्टर दिखेगा कि दिस इज शोइंग अपवर्ड्स मंथली, वीकली, डेली आल्सो, वहां पे देन देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड ब्रेकआउट स्टॉक्स. जहाँ पे ये होता है कि लोअर साइड का स्ट्रेंथ दिख रहा है, वहां पे ब्रेकडाउन स्टॉक्स भी मिलने के चांसेस होते हैं. अभी निफ्टी ऑटो देखते हैं. ये फटाफट हो जाता है एक्चुअली. व्हेन आई डू इट अलोन आई क्लोज इट विद इन लाइक 45 minutes. निफ्टी ऑटो यही करना होता है मंथली, वीकली, डेली. सो मंथली इज स्ट्रॉन्ग अप. इफ यू लुक एट RSI आल्सो इट इज स्ट्रॉन्ग अप. वीकली इज आल्सो स्ट्रॉन्ग अप. ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे और ये एनगल्फिंग भी दिखाया है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग अप. And daily, if you see, again strong up. तो ऑटो सेक्टर इज समथिंग आई विल बी इंटरेस्टेड इन. एंड अगेन ये अभी 70 के, इसको RSI को भी 70 इज लाइकली टू क्रॉस. यहाँ पे भी क्रॉसर हुआ है. तो ऑटो सेक्टर में मैं देखूंगा कि आर देयर एनी स्टॉक्स दैट आर शोइंग स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल्स. तो मैं यहाँ पे नोट्स ऐसे लिख देता हूँ. दिस इज अप, दिस इज अप, दिस इज अप, and here I will say RSI about to cross 70. Look for bullish opportunities. इसमें एक भी होता है कि if someone wants to invest in ETF, they can also do that. So जैसे if you see that a particular sector monthly, weekly, daily पे strong up दिखा रहा है, so you can also look for an ETF for that sector. And then in that ETF you can start an SIP or start buying into that ETF so that you don't have to look at individual stocks. लेकिन उसके लिए फिर मैं मंथली, वीकली, डेली नहीं देखता है. लुक एट क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली अगर ETF शुरू करना है तो. बिकॉज डेली चार्ट देके कुछ फायदा नहीं ETF के लिए. बट दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. या तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली. निफ्टी बैंक देख लेते हैं. निफ्टी बैंक again, if you look at monthly, trend is very strongly up. Weekly is sideways. So weekly में it is kind of forming a triangle. तो ये ट्रायंगल से अगर ब्रेकआउट हो गया तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग फॉर ए स्विंग. इस तरह का ट्रायंगल बन गया इफ यू सी. तो ये आई विल बी लुकिंग एट ए ट्रायंगल ब्रेकआउट. उसमें भी आई विल गेट हायर कॉन्फिडेंस इफ RSI आल्सो मूव्स अबव दिस लाइन. ये जो प्रीवियस पीक था, 70 के ऊपर मूव करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग. 70 के ऊपर मूव करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग. 70 के नीचे मूव करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग. 70 के ऊपर मूव करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग.
ये जो पीक है, इसके ऊपर अगर आरएसआई गया तो दैट विल गिव मी स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस कि बैंक बैंक निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक आउट बिग टाइम। वहां पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ। फ्यूचर्स तो मैं करता नहीं, बट आई टिपिकली वुड टेक ए बुल कॉल स्प्रेड इफ आई सी ए वेरी स्ट्रांग मोमेंटम। या तो कम से कम बेयर पुट स्प्रेड तो ले ही लेता हूँ। बेयर पुट स्प्रेड इज एज एन इजियर थिंग। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मैं अराउंड 46,000 का बेयर पुट स्प्रेड ले लूंगा। तो 46,000 विल बी, सॉरी, बुल पुट स्प्रेड 46,000 का मैं सेल करूंगा, और नीचे 45,500 या 45,300 का बाय करूंगा फॉर हेजिंग। तो दैट विल गिव मी ए वेरी गुड आरओआई। दैट इज व्हाट आई यूजुअली डू। महीने का लेके बैठ जाओ। So this was Bank Nifty. Like we said, monthly is up, weekly is sideways, and daily if you see it again sideways. Daily भी sideways ही दिखा रहा है. So I'm waiting for a breakout here. तब तक ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में. तो here I will say monthly up. I will say weekly up. साइड में था ना, साइड में था ना। Sorry, मेरी गलती. Daily is also sideways. I will say wait for weekly triangle breakout. I will typically prefer bull put spread, जिसमें you sell a put and buy a put way below. तो बीच में जो आपका जो ये होता है प्रीमियम, जो डिफरेंस रहता है दोनों में से, दैट इज द प्रीमियम यू आर टारगेटिंग टू ईट। एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज अबव दैट सेल पुट, जब तक उसके ऊपर रहेगा यू गेट 100% of the premium. Now I am looking at commodities. Commodities में मंथली स्ट्रॉन्ग अप, मंथली में ब्रेकआउट हुआ एक्चुअली। इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट था, थोड़ा नीचे जाके ऊपर आया, बट साइडवेज मूवमेंट था। यहाँ से ब्रेकआउट मिला उसको। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. इट हैज गॉन इनटू अ वेरी हाई मोमेंटम एरिया. वीकली इफ यू सी अगेन साइडवेज हो गया थोड़ा. सो आई विल वेट फॉर ए ब्रेकआउट हियर. इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस इंडेक्स, स्टॉक्स इन दिस इंडेक्स. यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट पकड़ लिया उसने. अभी इलेक्शन तक चलता रहेगा ये सब. अभी ये भी 70 के नीचे आ गया वीकली पे, तो इट इज लुकिंग फॉर डायरेक्शन. डेली में भी क्लियरली साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है. तो हियर आई विल से मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज. And here I will say look for breakout before taking positions. तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है स्टॉक्स ढूंढना. एक बार महीने के शुरू में मैंने ये कर लिया, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड स्विंग ट्रेड्स. एंड मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज, आपको आपने भी देखा होगा, जहां जहां पे भी ट्रेड मिल रहा है इजीली 5% 7% तो आराम से मिल जाता है. इफ यू आर लकी, माई टारगेट इज टू गेट 10%. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लेते हैं. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली ट्रेंड इज अप, लेकिन कन्विंसिंगली अप नहीं है. बहुत सारे विकी कैंडल्स है. वीकली इज आल्सो लाइक कन्विंसिंगली अप नहीं है. इट इज वेरी क्लोज टू द प्रीवियस लो, बट हायर 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 लो तो बना रहा है. और यहाँ पे इफ यू सी, ये जो आरएसआई है, दैट इज शोइंग ए निगेटिव डाइवर्जेंस. प्राइस ऊपर नया टॉप बना रही है, लेकिन आरएसआई नीचे खिसक रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा फॉल होने के चांसेस है. एंड इफ आई सी डेली अगेन साइडवेज मूवमेंट है. तो this is one sector, consumer durables, I will be very cautious about. I will not take any immediate decision. So monthly is up but weak.
Weekly is clearly sideways, daily is sideways. Look for stronger uptrend confirmation. Till that time, I will wait. Then I will now look at consumption. Consumption sector, again, monthly is up, very strong up. If you look at RSI also, it is in the very high momentum zone. Weekly is up, but slightly sideways. And daily, it has shown a breakout. यहाँ पे sort of sideways movement था. ये प्रीवियस टॉप को तोड़ के ऊपर गया, देन इट वाज हेजिटेटिंग टू टेक द नेक्स्ट वन, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, तो ये साइडवेज मूवमेंट था जहां से ब्रेकआउट हुआ है. तो द मोमेंट दिस आरएसआई क्रॉसेस 70, आई विल बी लुकिंग एट इट, लुकिंग एट स्विंग ट्रेड्स हियर. तो आई विल लुक फॉर ए ब्रेकआउट अबव दिस लेवल आल्सो. इसमें वन थिंग वी कैन डू इन शेरखान इज यू कैन आल्सो सेट दीज अलर्ट्स. अबव द टूल कर दिया, अलर्ट कर दिया. सो वेन एवर इट गोज अप बिलो अबव दिस, मुझे अलर्ट मिलेगा. यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ 70 पे. सो वेन एवर इट क्रॉसेस 70, आई विल गेट एन अलर्ट. यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट यहीं पे लगा देता हूँ. ठीक है. सो वेन इट क्रॉसेस दिस लेवल, आई विल चेक वेदर इट इज क्रॉसिंग दिस लेवल ऑल्सो. एंड इफ यस, देन आई विल लुक फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स वेयर आई कैन बाय. कंजम्पशन हो गया. Then consumption again, like I said, monthly up, weekly up to sideways, and daily is sideways. Up, this is up, sideways. इसमें ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कन्विंसिंग इसलिए नहीं कि उसमें सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है. वेट फॉर 70 क्रॉसओवर इन आरएसआई. सॉरी, हमारा ये कुछ मिसमैच हो गया. कंजम्पशन हो गया, ठीक है. कंजम्पशन इज हियर, डन. नाउ लेट अस लुक एट सीपीएसई. सीपीएसई टाइम लग रहा है. सीपीएसई में इट्स इंटरेस्टिंग. बहुत बड़ी अपमूव मिली थी आफ्टर ए ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, प्रीवियस टॉप. यहाँ से बहुत बड़ी अपमूव करके ऊपर गया है. आरएसआई इज आल्सो नाउ शोइंग साइंस ऑफ ड्रॉपिंग. मार्च मंथ कैंडल इज आल्सो a little bit of a doji. वीकली में भी दिख रहा है कि वीकली में इट इज ट्राइंग टू सी सम काइंड ऑफ ए, इतना बड़ा ड्रॉप आरएसआई में दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ में. यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. एंड इफ यू लुक एट डेली, ऑलरेडी ये 20 की लाइन तोड़ चुका है. तो 20 की लाइन टिपिकली अगर तोड़ेगा तो देर इज आल्सो ए टेंडेंसी टू स्टिक टू दिस एंड फॉल फर्दर. तो लेट अस सी वेयर इट कैन गो. अभी ये भी नीचे गया है काफी मोमेंटम. इफ यू सी ऑन ए डेली चार्ट, मोमेंटम इज क्वाइट डाउन. ये जो चैनल था, कंट्रोल की करता हूँ. ये एक तरह का चैनल था, ब्लू लाइंस अगर आप देखो. तो कंसिस्टेंटली प्राइस अगर आप देखो अपवर्ड चैनल बना रही है और आरएसआई डाउनवर्ड चैनल बना रहा है. तो दिस इज व्हाट कंसर्न्स मी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट द अप ट्रेंड. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. ये चैनल देखिए, फॉलिंग चैनल है, यहाँ पे राइजिंग चैनल है.
प्राइस ऊपर जा रही है, और यहाँ पे तो कन्विंसिंगली लोज दो तोड़े उसने, तो देर इज अ वेरी लाइकलीहुड दैट द प्राइस में फॉल फर्दर. So I will make a note here. Monthly is strong up, weekly is sideways, and daily is एक्चुअली साइडवेज है लेकिन डाउन के ये दिखा रहा है, तो साइडवेज ही लिखता हूँ अभी. Wait for convincing confluence of RSI and price. इसमें कभी कभी ये भी हम लोग देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड लगा के भी इट गिव्स अस ए वेरी गुड आइडिया कि क्या हो सकता है. I typically don't use too many indicators, but बॉलिंजर बैंड कभी कभी देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड में उसने क्या किया है, पहले 20 मूविंग एवरेज एंड हायर बैंड पे अप डाउन कर रहा था, ये तोड़ के नीचे आया है, तो इट में आल्सो डू एन अप डाउन ऑन द लोअर बैंड, लोअर साइड. कुछ कुछ टाइम पे ये चलते रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है. इफ यू सी यहाँ पे इट इज शोइंग सेलिंग प्रेशर इन दिस लास्ट कैंडल. अभी ये देखना है कि अगले महीने में क्या होता है, या अगले वीक में, अगले डे में कैसे ये करता है. अगर ये ट्रेंड तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन, तो नीचे भी जा सकता है, यहां तक आ सकता है. एक मिनट, ये बीच में आ गया फाइल फ्लोटिंग. सो सीपीएसई वी हैव नोटेड. नाउ विल गो फॉर एनर्जी. ये फटाफट हो जाता है एक्चुअली, ज्यादा टाइम बाद में लगता है. फॉर द अप सेक्टर्स दैट वी आइडेंटिफाई, वहां पे इंडिविजुअल स्टॉक्स देखना. नाउ विल लुक एट एनर्जी. एनर्जी सेक्टर में पहले एक तो मैं बॉलिंजर बैंड निकाल देता हूँ इसको. इफ आई लुक एट मंथली, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये प्रीवियस हाई को तोड़ के एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिया है, लेकिन यहाँ पे डोजी बन गया है पहले वाले चार्ट जैसा ही. लेकिन यहाँ इफ यू सी द आरएसआई इज शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. अब वीक, और ये जो है 20 मूविंग एवरेज, इट इज अराउंड द लेवल वेयर इट वाज ब्रोकन, द प्रीवियस हाई वाज ब्रोकन, तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है. इफ वी लुक एट वीकली, साइडवेज हो गया है मूवमेंट, यहीं पे आ सकता है नीचे. एंड डेली अगेन साइडवेज, और ये अभी यहाँ से राइज हो रहा है 50 के ऊपर. तो आई विल वेट टिल आई गेट कंफर्मेशन. सो मंथली स्ट्रॉन्ग अप. जहां भी डोजी दिख रहा है ना, ये दिस शोज कि इलेक्शन के लिए रुका हुआ है. इलेक्शन में क्या होता है, नया गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज करेगा, विच गवर्नमेंट विल कम, इट इज वेटिंग. दूसरा एनर्जी सेक्टर में ये भी है कि अनसर्टेनिटी इज बिकॉज ऑफ द वॉर्स गोइंग ऑन. ऑयल सप्लाई, ऑयल का कैसा रहेगा, डिमांड सप्लाई, उसके रेट्स कैसे रहेंगे. There is a lot of uncertainty which is reflecting in the doji. So here monthly up, weekly sideways, daily sideways. But surprisingly, the auto sector, which is going to be affected by the oil most, is Yeah. in the uptrend. Yeah, that is possible. Again, auto sector is looking at different things. Auto mein EV sector is picking up big time. Two-wheeler is picking up big time. So I am not too much into fundamentals, as you must have seen on the group. But मैं ये देख रहा हूँ कि अपटेक तो हो रहा है कार्स का, and people have discounted that price changes. Right. मतलब कितना भी प्राइस हो, कार लेना है तो लेना है. Correct. 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 एंड एफ्लुएंस आ रहा है इकोनॉमी में, सो पीपल आर ओके विद थोड़ा प्राइस, पेट्रोल डीजल का प्राइस ज्यादा देना पड़ा तो दे देंगे, लेकिन गाड़ी तो चाहिए. Right. प्लस ईवी का अभी अपटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, डिमांड अपटेक इन ईवी. आल्सो टू व्हीलर्स में भी काफी सेल बढ़ रहा है. दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज नॉट दैट अफेक्टेड. लेट अस सी व्हाट Right. हैपेंस. आई एम नॉट टू मच इनटू फंडामेंटल्स. आई ओनली गो बाय कि चार्ट जो बोलेगा वो करूंगा. Sure. Sure. वेट फॉर स्ट्रॉन्गर RSI confirmation. फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं अभी फटाफट.
So financial services, this will be an interesting chart. Up है लेकिन sideways almost flat है. If you look at momentum also it is flat. Weekly is flat, sideways. Daily is sideways. So I will not look for any major positions in the financial sector. Another point that we need to look at is daily में there is a very strong supply zone here. यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बोलो या सप्लाई जोन बोलो, वेरी स्ट्रॉन्ग जोन हियर. यहाँ पे है ये वाला चैनल, तो इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा उसको. इफ यू सी, सो अनलेस दिस चैनल इज ब्रोकन आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स. और हो सकता है अगर ये चैनल ब्रेक करेगा तब तक आरएसआई भी 70 क्रॉस करेगा, विच इज व्हेन आई विल बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर स्टॉक्स. तो यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ. एनीवेज लेटर ऑन आई विल go to each of these and set these alerts so that whenever that crossover happens, I will get an alert to look for stocks in that sector. FMCG देखते हैं, फिनेंशियल का मैंने लिखा नहीं अभी. मंथली ठीक है, आप ऐसा वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज. RSI above 70. Now if I look at FMCG monthly is up, weekly is gone sideways, daily is also sideways. यहाँ भी कुछ देखने का फायदा नहीं है. यहाँ पे वन इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपनिंग इज, ये 50 के बिलो था, यहाँ पे इट इज लाइक स्ट्रगलिंग अराउंड 50. यहाँ पे एक साइडवेज चैनल बन गया है. अगर ये 50 तोड़ के ऊपर आया एंड अराउंड दैट टाइम इफ इट आल्सो ब्रेक्स दिस हाई, उसके आगे कोई मेजर रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो हो सकता है प्रीवियस टॉप के आसपास चला जाए. तो दिस विल बी वन एरिया वेयर इफ दिस लाइन ब्रेक्स, अगर ये लाइन तोड़ेगा और तभी ये 50 क्रॉस करके ऊपर जाएगा या 70 तक जाएगा और ये भी तोड़ेगा, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दीज स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, टिल इट रीचेस दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है. So I will say monthly is up, weekly is sideways, daily is sideways. Monthly up, weekly sideways, daily sideways. Wait for break of previous high and RSI confirmation. तो महीने में कभी भी मैं देखूंगा ये शीट तो मुझे पता चल रहा है, जब ये अलर्ट हो जाएगा वहां पे शेरखान पे, आई विल इमीडिएटली गो एंड सी कि क्या हो गया है. इफ दैट ब्रेक हैज हैपेंड देन आई विल इमीडिएटली गो एंड सी द स्टॉक्स इन दैट सेक्टर. अभी हेल्थ केयर देखते हैं. हेल्थ केयर हेल्थ केयर में मंथली इज वेरी स्ट्रांगली अप. कोविड के बाद तो चल ही रहे हो अब. यहाँ से ब्रेकआउट आया था नवंबर दिसंबर में. वीकली साइडवेज हो गया है, डेली इज ऑल्सो साइडवेज. तो हियर आई विल हैव टू वेट फॉर ए ब्रेकआउट. यहाँ से ब्रेक डाउन के चांसेस तो कम है, क्योंकि यहाँ से इफ यू लुक एट आरएसआई आल्सो, मंथली इज अबव 70, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है. वीकली में अगर देखेंगे तो भी साइडवेज था, लेकिन देयर इज अ पोटेंशियल टू गो अप. यहाँ पे एक अच्छा सा उसने हैमर दिया है नीचे,
इफ यू सी दिस वन, तो इट इज शोइंग बुलिशनेस, और ये भी नीचे गया था लेकिन टर्न अप कर रहा है। अगर ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा इट विल कंफर्म हायर मोमेंटम। और डेली में आप देखो तो ये साइडवेज चैनल है, ये तोड़ेगा तो बाय दैट टाइम इट विल आल्सो क्रॉस 70, मोमेंटम विल आल्सो क्रॉस 70, आरएसआई विल क्रॉस 70, तो देयर विल बी अ गुड चांस ऑफ बाइंग। सो यहाँ पे मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज, एंड वेट फॉर चैनल ब्रेक। अप, sideways, sideways, wait for channel break, and RSI, daily RSI above 70। डेली RSI भी अगर तभी 70 के ऊपर गया इट विल गिव अस एडिशनल कंफर्मेशन। अभी आप देखिए तो बहुत ज्यादा भी बचे नहीं है, विल क्विकली क्लोज दिस, another 15 minutes at the most। I see. We are looking at infra। I hope my screen is visible। Yes, yes. Yes. अभी इंफ्रा देखते हैं। इंफ्रा में मंथली स्ट्रांगली अप एज एक्सपेक्टेड। इसमें ये भी होता है कभी कभी, वी सी दैट इफ इट इज गोइंग टू फार अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज देयर इज अ टेंडेंसी टू कम डाउन। तो ये मूविंग एवरेज भी साइडवेज सा हो जाता है, ये भी नीचे आ सकता है, बट लेट अस सी। वीकली इट हैज गॉन साइडवेज। अभी साइडवेज भी मतलब पता नहीं, ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो अप ही हो जाएगा। यहाँ पे भी इट इज शोइंग एन अपवर्ड काइंड ऑफ टेंडेंसी। सो मंथली स्ट्रांगली अप, वीकली कुड बी साइडवेज, एंड डेली इज क्लियरली साइडवेज। तो हियर आल्सो इफ यू सी अगेन, यहाँ पे भी ये चैनल था, एक फट से दिखा देता हूँ। वहां पे प्राइस ऊपर जा रही है और ये टॉप्स नीचे नीचे हो रहे हैं फॉर सो लॉन्ग। मतलब ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2023। प्राइस ऊपर ऊपर जा ही रही है, और यहाँ से फिर अभी फाइनली ये मोमेंटम तोड़ के नीचे आ गया। नाउ इट इज लुकिंग एट क्रॉसिंग। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के आरएसआई ऊपर गया और उसी टाइम पे अगर ये भी टॉप तोड़ दिया कन्विंसिंगली, मतलब ब्रेक होना चाहिए। अभी इसके ऊपर जस्ट जाके ऊपर से नीचे आए, तो आई लुक एट ए ब्रेकआउट अबाउट दिस लेवल जहां से गिरा है। यहाँ पे भी अलर्ट लगा दिया। सो अगर ये तोड़ के ऊपर क्लोज दिया डेली, डेली कैंडल ने, प्लस अगर ये 70 के ऊपर गया, आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। यहाँ पे अभी साइडवेज मूवमेंट है डेली में। सो मंथली इज स्ट्रॉन्ग अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज, वेट फॉर चैनल ब्रेक। निफ्टी आईटी, आईटी स्टॉक्स, आईटी में तो बहुत गड़बड़ चल रही है आजकल। इफ यू लुक एट इन्फी एंड ऑल, तोड़फोड़ चल रही है पूरी। सी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस। मतलब दिस विल टेम्प्ट मी टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ ए बेयर कॉल स्प्रेड। यहाँ का कॉल बेच दो, उसके ऊपर का 100-150 पॉइंट के ऊपर का खरीद लो और बैठे रहो, गिरता रहेगा। लेट अस लुक एट मंथली। मंथली में ये बेरिश कैंडल बना दिया है, सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ आईटी स्टॉक्स फॉलिंग इन द नियर फ्यूचर। ये मोमेंटम भी इज टर्निंग डाउनवर्ड्स। वीकली इज आल्सो क्लियरली शोइंग दैट। तो यहाँ तक तो आ ही सकता है। यू सी हियर इज द प्रीवियस टॉप व्हिच वाज आल्सो प्रीवियसली ए सपोर्ट, उसको तोड़ के अभी गया और यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाया है। तो यहाँ पे इट इज वेरी लाइकली कि यहाँ तक तो गिरे और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। इफ यू सी दिस थ्री थ्री कैंडल्स, ये डिमांड जोन बना के ये रेजिस्टेंस को तोड़ा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ तक तो गिर ही जाए। यहाँ पे गिर के थोड़ा साइडवेज जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। इफ देर इज अ फर्दर डिक्लाइन, फिर तो यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ नीचे एक दूसरा डिमांड जोन है।
तो इट मे कम टू दिस लेवल आल्सो। यहाँ पे भी एक प्रीवियस हाई था, यहाँ पे भी आ सकता है। सो आई एम क्लियरली बेरिश ऑन IT sector. So if you look at monthly is sideways, weekly is clearly down. If you look at this way, high है, फिर ये लो है, lower high, lower low. So and daily clearly down. और ये वाला जो था सपोर्ट जोन उसको भी निगेट कर चुका है विद सो मेनी साइडवेज कैंडल्स। तो यहाँ पे नॉट मच ऑफ होप। और यहाँ पे काइंड ऑफ इफ यू लुक एट ऑन द डेली चार्ट, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। इफ यू सी दिस इज फर्स्ट शोल्डर, हेड एंड सेकंड शोल्डर, इसको तोड़ के नीचे आया है, तो उसका भी मोस्टली टारगेट विल बी क्लोजर टू दिस। सो मंथली साइडवेज, वीकली डाउन, डेली डाउन, बेरिश, साइडवेज, डाउन। निफ्टी मीडिया देख लेते हैं। मीडिया में सन टीवी जैसे स्टॉक्स है। सन टीवी आई एम लुकिंग एट ए लॉन्ग टर्म बाय इन द करंट सिचुएशन। अभी गिर सकता है और, बट आई एम लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म बाय बिकॉज इफ यू सी हियर दिस इज अ लॉन्ग टर्म हाई 25,400 के आसपास। वहीं पे प्रीवियसली सपोर्ट लिया है। तो ये एक जोन था जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई थी, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ तक आके फिर से बाउंस हो गया, आई विल बी टेकिंग टारगेट अप टू दिस। So anyways, we'll get into stock level discussion later, but right now, if you see immediately, monthly seems to be sideways. Weekly is also sideways to down. I will call it down only this way. Lower time frame का देखे तो daily is also down. So this is similar to IT. निफ्टी मेटल देख लेते हैं। टाटा स्टील, हिंदाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, those kind of companies. ये डबल क्लिक समझे। कभी कभी ये ट्रैक पैड का हो जाता है गड़बड़। मीडिया तक गए थे, अभी मेटल देख लेते हैं। मेटल मंथली इज अप। ये साइडवेज ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर गया है। यहाँ पे काफी कंजेशन हुआ था। तो यहाँ पे कंजेशन था, कंजेशन तोड़ के ऊपर गया है। यहाँ पे 70 को भी क्रॉस करने वाला है मेटल। वीकली थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आई विल वेट फॉर ए ब्रेकआउट। यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते हैं, बट व्हाई टेक द रिस्क। इसको ब्रेकआउट करने दो कन्विंसिंगली। यहाँ पे अगेन साइडवेज मूवमेंट कर रहा है वो। तो ये कंजेशन तोड़ के जब ऊपर जाएगा तब तक होपफुली ये 70 भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा। एंड आई विल नॉट वेट फॉर 70 क्रॉस, आई विल वेट फॉर दिस टॉप टू बी क्रॉस्ड, 75 पॉइंट समथिंग। अगर ये क्रॉस करेगा, ये भी क्रॉस करेगा, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट मेटल स्टॉक्स कुड पिक अप ए बिग टाइम थिंग। सो आई विल पुट एन अलर्ट हियर, सेट अलर्ट, एनेबल सेव। ये दिन में एक बार भी देख लिया तो काफी है। इफ यू आर लुकिंग एट स्विंग ट्रेड्स, यू डोंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एवरी टाइम। मेरा तो मतलब दिन में कंसल्टिंग के वगैरह असाइनमेंट्स रहते हैं, आई एम टॉकिंग टू क्लाइंट्स ऑल डे। तो दिन भर देखने का कभी कोई चांस भी नहीं मिलता। बिटवीन मीटिंग्स देख लेता हूँ कभी कभी, या तो फिर एंड ऑफ द डे भी देख लिया तो चलता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। डेली देख लेते हैं। डेली में भी इफ यू सी देयर इज अ वेरी साइडवेज मूवमेंट। ये साइडवेज जा रहा है, इसका ट्रेंड डाउन हो रहा है।
मोमेंटम का, RSI का, तो आई विल नॉट immediately look at buying. I will wait for this sideways channel to be broken on daily. एंड अराउंड दैट टाइम अगर ये साइडवेज चैनल भी टूट गया, RSI का 75 क्रॉस कर दिया, दैट विल बी ए वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर मी कि मेटल में स्टॉक्स देखना चाहिए. सो इसमें है मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज. मंथली अप, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज. वेट फॉर डेली चैनल ब्रेक एंड ऑल्सो RSI above 75. आई यूज ए वेरी सिंपल मेथड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके फायदा नहीं है, और इससे रिजल्ट्स मिलता है. Mr. Ravi, are you there? Yes. Yes, I'm here. Okay, please have a look at media again because I think what you did is you looked at IT charts twice, and you wrote the same thing under media. Let me check. Good, Yeah, good. yeah. You. Thanks. Thanks for alerting me. No, that's fine. I was following that. So I noticed that they were IT charts. But ठीक है. So I may have double clicked on the wrong index. yeah, Let us say media again. So media again, here it is a sideways thing. Monthly, weekly is also sideways. Sideways, and if you look at momentum, it has crossed below 30. So some people call it a oversold zone. What I say is oversold hai, so there is some reason why it is oversold. I don't look at stocks unless they at least cross 50 and head towards 70. I'm very confident if they cross 70 on the daily, because then the momentum is very strong. और अपने को थोड़ी लाइफ लॉन्ग लेके बैठना है, अपने को शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रांग चाहिए, सो वी गेट ए स्ट्रांग स्विंग ट्रेड. तो वीकली में भी साइडवेज है, डेली में तो ट्रेंड डाउन है, डाउन टू साइडवेज. इफ यू लुक एट द लास्ट फ्यू कैंडल्स, साइडवेज हो गया है. बट ये अगर टूटेगा ना, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट ये, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल नहीं देखना है. ये अगर टूटा, then I will be looking at media stocks that show a similar thing, and then I may be able to take put options, या तो get into a bear call spread, क्योंकि यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है. सो थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट. मीडिया का भी अपना रीलुक हो गया, साइडवेज, साइडवेज एंड डाउन. मीडिया का डाउन डाउन भी बोल सकते हैं इफ यू लुक एट इट दिस वे. मंथली इफ यू सी साइडवेज है, वीकली तो क्लियरली डाउन भी बोल सकते हैं, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, तो वीकली इज डाउन. एक है यहाँ पे कि एक ये डिमांड जोन के आसपास आ गया है, यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, पता नहीं क्यों हो रहा है बीच बीच में. ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसके पास आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस मिले. बट यहाँ से बाउंस भी मिला तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है नियर द RSI. So I'm not very convinced in going long on this. It may look, I may look at going short, especially अगर ये भी तोड़ दिया, नीचे वाला जो सपोर्ट है, ये तोड़ा तो there is a very strong downside here. So not very convinced of this. Media sideways down down. ये डाउन डाउन ये बेरिश ही है, ठीक है. MNC MNC कंपनीज नेस्ले जैसी है, नेस्ले, HUL काइंड ऑफ कंपनीज. मंथली स्ट्रॉन्ग अप, weekly is also very nicely up, daily is also strong up. Now daily it's about to cross 70. So MNC companies में I will be interested in looking at swing buys. So up ही है सब कुछ.
एमएनसी हो गया, ऑयल एंड गैस, एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल। प्लीज आप, जैसे उधर एनर्जी में देखा था वैसे ही इधर हो रहा है। वीकली हैज गॉन साइडवेज, डेली हैज आल्सो गॉन साइडवेज। तो यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है, ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ भी बन गया या हेड एंड शोल्डर टाइप। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली नॉट लुकिंग एट एनी बाइज। अब है, साइडवेज है। निफ्टी फार्मास के लिए फार्मा मंथली इज स्ट्रॉन्ग अप, वीकली इज अप टू साइडवेज, लेकिन यहाँ पे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हैमर दिया है। डेली इज करेंटली साइडवेज, so I will wait for this to break. I will wait for this top to break, because ये अगर टॉप ब्रेक हो गया और तभी अगर 70 क्रॉस कर लिया, तो वी कैन गेट वेरी गुड स्विंग ट्रेड्स, मतलब 10% भी मिल सकता है। आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर, लेकिन सिप्ला का ऐसे हुआ था। सिप्ला गिव मी वेरी नाइस दिस थिंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड तो काफी अच्छा मिल गया था सिप्ला पे मुझे लास्ट टाइम व्हेन इट डिड दिस थिंग, यहाँ पे साइडवेज होके जब ऊपर गया था। तो हियर आई विल लुक फॉर दिस ब्रेकआउट। So monthly is up, weekly is kind of sideways, and daily is sideways right now. Up, sideways. Look, rate of all-time high, and RSI above 70. Now private banks. So if you look at private banks, monthly is up है लेकिन sluggish है, ट्रेंड तो अप है, लेकिन इफ यू लुक एट मोमेंटम आल्सो, आरएसआई आल्सो साइडवेज है, ज्यादा पावर नहीं उसमें अप ट्रेंड में। वीकली भी साइडवेज है, डेली भी साइडवेज है। तो और यहाँ से अगर ये तोड़ा भी अगर ये चैनल, तो भी ऊपर रेजिस्टेंस है। सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट प्राइवेट बैंक्स। सो मंथली इज अप, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। आई विल वेट टिल दिस टॉप इज टेकन आउट, ऊपर वाला 25,000 के आसपास वाला। तो इसको अप पे साइडवेज है, इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। फिर पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक बार ध्यान से, प्राइवेट बैंक पे चला, डबल क्लिक गलत जगह हुआ। या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अगेन मंथली ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग अप, वीकली ट्रेंड हैज गॉन साइडवेज बट विथ ए बुलिश बायस, ये वाला जो कैंडल बन गया है। और 20 मूविंग एवरेज भी काफी पास आ गया है, ये भी ऊपर टर्न कर रहा है। सो मंथली इज अप, वीकली इज काइंड ऑफ साइडवेज, क्योंकि ये लो ब्रेक हो गया और ये हाई ब्रेक हो गया, तो हायर हाई हो गया और लोअर लो हो गया। डेली में भी साइडवेज ही है, ये हाई था, ये लो था, तो ये लो इज ऑलमोस्ट सेम और हाई तोड़ दिया है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे भी इट इज जस्ट क्रॉसिंग ओवर 50। ये वाला अगर ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, तो आई विल लुक एट 70 क्रॉस होना चाहिए और इसका टॉप क्रॉस होना चाहिए। दैट इज व्हेन आई विल लुक एट बाइंग एनी पीएसई स्टॉक्स। काफी अच्छा रनअप हो गया है उसमें। सो मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज। पीएसयू बैंक,
ये सारे एसबीआई जैसे बैंक्स स्ट्रॉन्ग अप, मंथली स्ट्रॉन्ग अप, वीकली साइडवेज, डेली इज ऑल्सो साइडवेज टू डाउन। साइडवेज ही बोल सकते हैं क्योंकि ये लोअर लो बना है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई भी बना है, हायर हाई बना है, तो साइडवेज हो गया। यहाँ पे मोमेंटम इज पिकिंग अप। सो अगर ये हाई तोड़ा, प्रीवियस हाई तोड़ा और 70 क्रॉस किया, इट विल गिव मी कॉन्फिडेंस टू गो लॉन्ग ऑन पीएसयू बैंक्स। सो मंथली अप, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। विल वेट। रियलिटी सेक्टर, इफ यू रिमेम्बर लास्ट मंथ में मैंने बोला था कि आई विल बी बुलिश इन रियलिटी सेक्टर। लास्ट मंथ आई डोंट नो हु ऑल अटेंडेड, आई डोंट रिमेम्बर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिया भी था उसने तभी। मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज राइट नाउ। यहाँ पे थोड़ा जंप मिला था लास्ट मंथ में, ये जो है मार्च में, यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया था, इफ यू सी। और इसके ऊपर ओपन होके आई थॉट इट विल कम ऑल एटलीस्ट अप टू दिस लेवल, दिस हाई। तो ठीक है, इतना तो नहीं बढ़ा। सो वीकली इज साइडवेज, मंथली इज अप, वीकली साइडवेज, डेली इज ऑल्सो साइडवेज। तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी स्टोरी नहीं होने वाली अभी। एंड देन सर्विस सेक्टर, so monthly is strong up. If you see in most stocks, अभी मार्च मंथ जो है वो डोजी में क्लोज हुआ है, तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। तो अप्रैल भी हो सकता है, काफी जगह पे काफी स्टॉक्स में साइडवेज ही रहे। एंड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर क्लियर, फिर मई जून में शायद रैली हो सकती है, तो बड़ा फॉल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हु कम्स इनटू पावर। मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज। ये चार्ट Also, June will be budget. सॉरी, I said June also will be budget month. या The final डेफिनेटली, budget. Yeah. डेफिनेटली। सो So इसीलिए that इतना also बड़ा can give गैप some है। directions. या तो इसीलिए इतना बड़ा गैप है ना, तो ये जब तक तोड़ेगा नहीं हाई, तब तक तो आई विल नॉट टेक ए चांस। एंड देयर आर सम सेक्टर्स वेयर डिस्पाइट विच गवर्नमेंट कम्स, बुलिशनेस दिख रहा है, तो वहीं पे वी विल पुट आवर मनी। जैसे ऑटो सेक्टर है, गवर्नमेंट कोई भी आए जाए, उधर तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उधर तो सेल बढ़ ही रहा है। ये साइडवेज दिख रहा है। सो मंथली इज अप, वीकली इज साइडवेज, डेली इज साइडवेज। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक शायद कर लिया हम लोगों ने, ये ऊपर गया, सॉरी, रियलिटी सर्विस सेक्टर देखना था। सर्विस सेक्टर का दैट वाज आल्सो सर्विस सेक्टर, सॉरी, माय मिस्टेक। रियलिटी भी हो गया था, रियलिटी। सर्विस सेक्टर। ये एक अच्छा है सर्विस सेक्टर में। ये साइडवेज मोमेंटम था, वो काफी स्ट्रांगली तोड़ा हुआ है। देयर वाज ए साइडवेज मूवमेंट, काफी स्ट्रांगली तोड़ा हुआ है यहाँ पे, विथ ए वेरी स्ट्रांग कैंडल। नाउ इट इज वेटिंग फॉर इलेक्शंस एंड बजट, लाइक वी सेड। तो आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक टू बी टेकन आउट। ऑल टाइम हाई समवेयर हियर। ऑल टाइम हाई तोड़ने दो, ये 70 के ऊपर जाने दो, देन इट आई विल लुक फॉर बाइज हियर। बट इफ यू लुक एट इट दिस वे, मंथली इज साइड अप हो गया है अभी, वीकली साइडवेज है, और डेली साइडवेज है। सो विल वेट फॉर द टॉप टू बी ब्रोकन आउट, और डेली में अगर ये 70 ब्रेक करके जाए, तो स्विंग में आई विल बी वेरी हैविंग ए वेरी हाई कॉन्फिडेंस। बट लगता है वो बजट तक रुकना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मंथली अप, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। Wait for ATH breakout, all-time high breakout, and daily RSI above 70। तो मेरा नॉर्मली यही करता हूँ मैं। नॉर्मली अभी तो 1 घंटा लग गया, पौना घंटा, बट अकेले करता हूँ तो आधे घंटे में हो जाता है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई डू दिस एक्सरसाइज, एंड देन आई गो टू स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ पे अप ही दिख रहा है, जैसे ऑटो है, तो देन आई गो टू हियर
market watch, and then in Nifty I open the auto sector, Nifty auto. तो ये ऑटो वाले मैं स्टॉक्स फिर देखने लगता हूँ यहाँ पे. सो सेम थिंग आई डू मंथली, वीकली, डेली. जस्ट एज एन एग्जांपल, मंथली अप है लेकिन नीचे साइडवेज हो रहा है. वीकली तो डाउन ही दिख रहा है. डेली इज आल्सो अप है लेकिन इट इज नियर ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब मिस्टर लेलैंड विल नॉट गिव मी मच मनी. सो आई विल स्किप इट. लुक एट बजाज ऑटो. Bajaj Auto may have already taken a breakout trade. If you remember, I had put it on the group also with a very big target. तो मंथली में इफ यू लुक एट इट, स्ट्रॉन्ग अप, और ये बेरिश कैंडल था उसको तोड़ के ऊपर गया है, विच गिव मी हायर कॉन्फिडेंस. 70 क्रॉस किया है. वीकली में भी है साइडवेज कंजेशन को उसने तोड़ा हुआ है. अभी कन्विंसिंगली तोड़ा नहीं है लेकिन तोड़ा हुआ है. थोड़ा इधर वरी था कि हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा, हायर लोज इधर बना रहे. आरएसआई में थोड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस है. एंड डेली में अगर देखो तो ये हाई तोड़ के ऊपर गया है. तो मेरा एंट्री इधर है 9017. स्टॉप लॉस इज बिलो दिस लो. ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. एंड इफ यू लुक एट टारगेट इज अबाउट 2200 काइंड ऑफ का टारगेट है. आई एम लुकिंग एट दिस एट ए प्योरली लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग. मतलब एक साल भी लग सकता है. बट आई एम ओके विथ वेटिंग फॉर बजाज ऑटो बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोजिशन दिख रहा है. सो अच्छा खासा मैं पोजीशन लेके बैठा हूँ यहाँ पे बजाज ऑटो में. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगेन ऑटो में है बिकॉज ऑफ सम ऑफ इट्स ऑफरिंग्स. सो मंथली साइडवेज, वीकली हैज गॉन डाउन, डेली हैज गॉन डाउन. तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, स्किप करते हैं. भारत फोर्ज अगेन इज नॉट रियली ऑटो ऑटो, इट इज अ सप्लायर टू द ऑटो इंडस्ट्री. इधर भी कहानी थोड़ी ऐसी है. टॉप बना के नीचे आया है नियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन. वीकली में डाउन ही दिख रहा है. डेली में भी साइडवेज हो गया है. तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा चांसेस नहीं लग रहे भारत फोर्ज में. भारत फोर्ज हो सकता है अगर इसको तोड़े ये टॉप को तो आ सकता है यहाँ पे. बट अगेन दैट इज नॉट मच ऑफ ए रूम. तो ये है 1213 और 1268. सो हार्डली एनी रूम टू डू एनीथिंग हियर. सो भारत फोर्ज भी स्किप कर देंगे. एक सेक्टर में दिखा रहा हूँ एग्जाम के लिए व्हाट आई डू. वॉश मंथली अप है स्ट्रॉन्ग. वीकली इज ऑल्सो अप बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. डेली इज ऑल्सो साइडवेज. तो यहाँ पे अनलेस इट शोज ए मूव अबव 70, आरएसआई मूव अबव 70, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है. उसके टॉप आरएसआई के नीचे जा रहे हैं और इसके प्राइस के ऊपर जा रहे हैं. तो अगर इसने ये वाली लेवल तोड़ दी ऑल टाइम हाई विथ दिस गोइंग अबव 70, आरएसआई गोइंग अबव 70, तभी मैं सोचूंगा. लेकिन इसमें मैं एक अलर्ट लगा के रखूंगा. कंट्रोल एच, इसको शिफ्ट करके रखता हूँ यहाँ पे. और अलर्ट भी ये होती है कि वो क्रॉस करेगा तो मुझे पता चलता है. बट आई विल वेट फॉर ए डेली कैंडल क्लोज अबाउट दैट. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ऊपर जाके तोड़ के नीचे आ जाएगा अगेन, लाइक इट हैपेंड हियर. तो आई विल पुट एन अलर्ट हियर. ये वाला जो है वो इसमें अच्छा है अपना. इट हैज गॉट ए वेरी गुड फीचर इन ट्रेडिंग व्यू वेर यू कैन से अलर्ट विल साउंड ओनली आफ्टर द कैंडल क्लोजेस, जो इसमें नहीं है ट्रेड टाइगर में. ट्रेड टाइगर में ये भी है कि ऑर्डर सेटिंग्स विंडो कौन सी ओपन होगी. वेदर यू इफ यू वांट टू डू इन ट्रेड्स इन ऑप्शंस, यू कैन से आई वांट टू लुक एट कॉल ऑप्शंस. तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा इट विल ओपन दैट कॉल ऑप्शन वाला विंडो. अगर मुझे बेयर बुल पुट स्प्रेड लेना है तो मैं पुट पे क्लिक करूंगा. तो इधर भी कुछ नहीं है. आइशर मोटर्स मैंने लेके रखा है. अच्छा खासा टारगेट मिल गया मुझे. यहाँ पे एंट्री किया था और ऊपर टारगेट अचीव भी हो गया. स्टॉप लॉस नहीं हुआ मेरा उधर. गुड, मेड सम गुड मनी हियर. आइशर मोटर में इफ यू लुक एट इट 219 हो गया ऑन 3743, 3744 बोल सकते हैं.
220 by 3744. 744. 5.8 हो गया परसेंटेज। इन हाउ मेनी डेज? मेरा एक्चुअली परचेस इधर हो गया था, इधर नहीं हो गया था, तो कम है क्योंकि ये इसके ऊपर ही ओपन हो गया। सो माई एंट्री वॉज नॉट रियली हियर। यहाँ से गैप अप हुआ, तुरंत मैंने यहाँ से एंटर किया था, तो एक्चुअली मुझे इतना ही मिला, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। तो 142 ही मिला मुझे, बट नॉट बैड। अभी तो इसमें एंट्री नहीं है कुछ। अगर शायद यहाँ पे वापस आ जाए तो आई मे लुक एट एन एंट्री डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज। यहाँ पे मुझे इस कारण का कॉन्फिडेंस मिला था, ये ट्रायंगल बन गया था। ये ट्रायंगल तोड़ के ऊपर गया, फिर आके फिर टेस्ट करके ऊपर गया, साइडवेज हो गया, देन इट केम टू ए वेरी स्ट्रांग डिमांड जोन। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे। यहाँ पे डिमांड मतलब ये बाद में बनाया मैंने एंट्री, यहाँ पे डिमांड जोन था, इसके ऊपर मेरा एंट्री था। ये जो है यहाँ से यहाँ तक डिमांड जोन था, यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ से ऊपर जंप करके इधर ही ओपन हो गया, तो आई बॉट हियर, इट डिडंट कम डाउन हियर। लेकिन वापस अगर इधर आएगा तो देयर इज अ गुड चांस दैट आई विल बाय। हीरो मोटो को हीरो मोटर का देख लेते हैं। मंथली इज अप, मोमेंटम इज आल्सो अबव 70, वीकली साइडवेज है, डेली भी साइडवेज है, तो इधर ज्यादा कुछ नहीं है। हीरो मोटो आई विल नॉट बी लुकिंग एट इमीडिएटली। हो सकता है इंट्राडे में कुछ दे दे, बट स्विंग के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। महिंद्रा महिंद्रा का भी इट हैज क्रॉस्ड ओवर 50, शोइंग मोमेंटम इज गोइंग अप, लेकिन यहाँ पे काफी सेलिंग सपोर्ट था। लास्ट कैंडल जो फ्राइडे का क्लोज हो गया, थर्सडे का। सो मंथली ट्रेंड इज अप, स्ट्रांगली अप, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है टॉप आरएसआई का। वीकली इज अप टू साइडवेज। यहाँ से प्रीवियस टॉप जो था वहां के वहां से सपोर्ट लेके आ रहा है, तो हो सकता है इसको इस हाई को तोड़े। तो मेरा यहाँ पे रहेगा, आई विल पुट एन अलर्ट हियर। इसके ऊपर अगर वो क्लोज दे दे और तभी अगर आरएसआई भी 70 क्रॉस करे, तो आई विल बी लुकिंग एट ए स्विंग बाय। मैं इसके ऊपर स्विंग बाय करूंगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा। ये जो लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दूंगा, एंड देन आई विल पीसफुली वेट। तो दैट वाज M&M। मारुति मंथली इज वेरी स्ट्रांगली अप। ये एक साइडवेज मूवमेंट तोड़ के ऊपर गया है, 70 भी अभी अभी तोड़ा हुआ है। वीकली भी स्ट्रांग है, ये भी साइडवेज मूवमेंट तोड़ के ऊपर गया है। डेली भी स्ट्रांग है। सो दिस इज वन स्टॉक आई विल बी लुकिंग एट बाइंग। अभी इसमें मैं दो चीजें कर सकता हूँ, आई कैन टेक ए स्मॉल क्वांटिटी इफ इट क्रॉसेस ओवर दिस, ये डोजी को अगर ये तोड़े। एक तो यहाँ मैं बाय कर सकता हूँ, या तो आई विल लुक एट ए लोअर फॉल। अगर कहीं से फॉल हो गया तो आई विल ऐड टू माय क्वांटिटी व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस प्रीवियस लेवल, इसके आसपास कहीं पे। तो हो सकता है यहाँ से ले सकता हूँ। तो व्हाट आई विल डू हियर इज, ब्रेकआउट हुआ तो उधर ले ही लूंगा, प्लस आई विल कीप सम ऑर्डर्स हियर। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा होगा, जस्ट आई विल प्लॉट द स्टॉप लॉस आल्सो। तो स्टॉप लॉस आई विल कीप बिलो दिस, बिकॉज आई डोंट लाइक स्टॉप लॉस गेटिंग हिट। तो 800 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1600 का टारगेट रहेगा।
तो दिस व्हेन आई टेक द ट्रेड आई विल लुक एट इट अराउंड 1600 का टारगेट लेके बैठ जाऊंगा। इसमें एक अच्छा है ना कि शेर खान में यू कैन डू दिस काइंड ऑफ ए थिंग। यहाँ पे यू कैन हैव एन ऑर्डर इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। यहाँ पे आई कैन पुट द क्वांटिटी आई वांट। परचेस प्राइस जो है वो 12,000 आ गया। गुड फॉर डे में यहाँ पे बुक प्रॉफिट टारगेट भी डाल सकता हूँ, स्टॉप लॉस प्राइस भी डाल सकता हूँ, लिमिट लॉस टू 11230। And then good for day, I can change to my good today, good till this date. 26 सितंबर तक जब भी ये प्राइस वहां पहुंचेगी, अगर गिरी तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। सो दिस इज वन गुड फीचर गिवन इन शेर खान ट्रेड टाइगर। तो यहाँ पे जब भी कभी प्राइस गिरेगी यहाँ पे बाय हो जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस होगा। टारगेट के ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मुझे देखने की जरूरत नहीं, एक बार ऑर्डर सेट कर दिया तो सितंबर 26 तक देखने की जरूरत नहीं। बट मारुति इज समथिंग आई विल बी डेफिनेटली लुकिंग एट। मदरसन इज अगेन एन एंसिलरी सप्लायर। कुछ भी वहां पे दिख नहीं रहा है। मंथली इज नॉट एक्साइटिंग, वीकली इज नॉट एक्साइटिंग, डेली इज आल्सो नॉट एक्साइटिंग, तो छोड़ दो। मदरसन नॉट इंटरेस्टेड। एमआरएफ, ये तो स्टॉक लेना मुश्किल है एट दिस कॉस्ट, बट स्टिल विल सी। एमआरएफ का इफ आई वर लुकिंग टू बाय, आई विल लुक एट बाइंग अराउंड दिस लेवल। मैं तो खरीदने वाला नहीं हूँ इतना, मतलब एक स्टॉक लेके बैठना पड़ेगा अगर ये देखना है तो। बट फॉर एकेडमिक पर्पज मैं ये देखूंगा कि आई विल टेक एन एंट्री हियर, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रन हुआ है आफ्टर साइडवेज मूवमेंट। 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ गया है। स्टॉप लॉस मेरा ये वाला जो जोन है इसके नीचे रहेगा, ये प्रीवियस स्टॉप के नीचे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। और टारगेट अकॉर्डिंगली विल बी 2:1। तो एकेडमिक पर्पस के लिए मैं देखूंगा इसको, लेने की तो अभी औकात नहीं है। 2:1 समवेयर हियर। मतलब पर स्टॉक 22,000 का रिस्क है एंड 44,000 रफली इज प्रॉफिट पोटेंशियल। अगर इफ समवन हैज दैट काइंड ऑफ ए कैपिटल वेयर यू कैन पुट मनी हियर, फील फ्री। ये पहले सोना स्टीयरिंग होता था, अभी सोना कॉम्स हो गया कुछ। मंथली इज साइडवेज, वीकली इज आल्सो अप नॉट साइडवेज, बट इफ यू लुक एट मोमेंटम इट इज इन कंजेशन। अगर मोमेंटम स्ट्रांग अप हो जाए तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। ऊपर ऐसे स्ट्रांग कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है 860 तक। यहाँ पे काफी कंजेशन हो रहा है, सो अभी नॉट इमीडिएटली इंटरेस्टेड, लेकिन अगर इसको तोड़े तो इट विल बी समथिंग टू लुक एट। तो इसको एक अलर्ट लगा के रख देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग्स सच सरप्राइजेस समटाइम्स। बंद कैसे करूं, एस्केप मारना पड़ेगा। या ये जब से मैंने ऑफिस 21 लिया है, 2021, तब से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बीच में कभी कभी पॉपअप हो रहा है। तो दिस आई विल सेट एन अलर्ट से। इसके ऊपर अगर गया, ये 70 क्रॉस किया, तो सोना स्टीयरिंग विल बी समथिंग गुड टू लुक एट, क्योंकि आगे का रेजिस्टेंस आई विल सी टिपिकली हियर, इसके आसपास। तो 840 तक अगर गया तो 700 टू 840, मतलब 140 ओवर 700 इज ए गुड थिंग। 140 डिवाइडेड बाय 700, 20% roughly, which is good. So this is how I look at taking my trades. टाटा मोटर 3 ही बचे हैं तो देख लेते हैं। Anyways, we started a little late. तो
Monthly is up. Weekly is also up to sideways. गिर सकता है अभी और डेली sideways. तो यहाँ पे I will wait for this 70 to be crossed and this all time high to be taken out. वहां से बहुत बड़ी मूव मिल सकती है टाटा मोटर्स की. एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस कॉल, तो बाद में भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअली क्या हुआ, बिकॉज दिस इज अगेन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न. दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग लाइक ऑल ऑफ यू. ट्यूब इंडिया चैसिस वाले वगैरह है ये लोग. साइडवेज है, वेरी वीकी. वीकली भी कुछ नहीं है, डेली भी कुछ नहीं है. ट्यूब इंडिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड. And then lastly, TVS Motor. TVS Motor also gave me a very good swing trade last month. ये monthly is up. If you see last month, it went very nicely up. Monthly is up. Weekly is, ये अगर देखो तो यहाँ इसके जैसे ऊपर गया एंट्री, उसके ऊपर आई गॉट ए गुड ट्रेड. माय टारगेट वाज हियर, तब तक वहां तक तो पहुंचा नहीं. लेकिन इफ यू लुक एट बेयर बुल पुट स्प्रेड, उसने अच्छा रिटर्न दिया मुझे इसमें. महीने के शुरुआत में लेके रख दिया. अभी तो कुछ नहीं लग रहा है टीवीएस में. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो विल वेट एंड वॉच. तो इसमें भी आइडेंटिफाइड ए कपल ऑफ ट्रेड्स इन ऑटो. सिमिलरली अभी मैं क्या करूंगा, कल टाइम है संडे को, तो आई विल सिट एंड लुक एट निफ्टी ऑटो देखूंगा. फिर ये निफ्टी एमएनसी देखूंगा, इसमें भी अप 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 दिख रहा है. और अप अप साइडवेज है, वो भी मैं एक बार नजर मार दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स रहते हैं उसमें अप 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 भी हो जाता है. जब तक मतलब इंडेक्स साइडवेज है लेकिन स्टॉक अप हो गया तीनों में. तो निफ्टी एमएनसी में मैं देखूंगा टुमारो. देन निफ्टी कंजम्पशन भी देख लूंगा, बिकॉज अप अप साइडवेज है. और निफ्टी तो डेफिनेटली, निफ्टी तो मैं रोज ही देख लेता हूँ. निफ्टी देखूंगा, निफ्टी ऑटो देख लूंगा. निफ्टी कंजम्पशन इज वर्थ लुकिंग एट. एमएनसी इज वर्थ लुकिंग एट फॉर दिस मंथ. तो ये यही सेक्टर्स आई विल बी लुकिंग एट. इसमें कुछ मिला तो इट इज गुड. एंड टिपिकली 5-6% तो महीने में मिल जाता है इफ यू लुक एट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स. कभी कभी 10% भी मिल जाता है इफ यू आर लकी. सो दिस आई हैव सेव्ड, एंड दिस आल्सो आई विल क्लोज. एनी क्वेश्चंस, एनी ऑब्जर्वेशंस? अगर आपको लग रहा है मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी इनफ टू लर्न. Ravi, hi, Dilip here. या Just wanted to check, like you did for the exercise for the daily, weekly, and monthly for prices. You also mentioned few people do it on RSI basis. यस. And I was the one who sometimes follow the RSI this thing. So I या was wondering, is it a sea change between the price index and this thing, or it normally goes hand in hand? And there might be exceptional cases where both goes totally in different directions. See, I look at price as the primary thing. For example, अभी price, if it is going strong up and if it has gone too far away from the 20 moving average, then I will look at RSI. कि इतना ऊपर चला गया है, तो should I look at is there a possibility of correcting down to 20? अगर उसमें भी RSI अगर दिख गया कि डाइवर्जेंस दिखा रहा है, या तो 70 के नीचे चला गया, then I feel a little less confident about the long trade. Then I will look at RSI and then take a call. अगर RSI भी Okay. 70 के ऊपर है, upwards दिखा रहा है, then I will buy. Right. Otherwise, I will wait for RSI to go above 70. Like in most cases I have discussed, I will wait for RSI to cross 70 because the momentum is built. तो Okay. नॉर्मली हम लोगों ने चलती गाड़ी में चलना नहीं चाहिए, लेकिन स्टॉक्स में प्रिफर कि चलती गाड़ी में चढ़ो. Right. क्योंकि Right. रिलायंस जैसे स्टॉक में अगर लेके बैठो, अच्छा है अच्छा है, और 7 साल रुकना पड़े, 8 साल रुकना पड़े, तो कुछ मतलब नहीं है. So फायदा नहीं है. Right. 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 So I look at stocks that are now picking momentum. 70 के ऊपर क्रॉस हो गया है. So in the short term, it will give me good ROI, because we are Correct. not sitting on like hundreds of crores की 1% 2% मिला तो भी आसान है, अच्छा है. Right. We Right. are working on smaller capitals. So we are looking True. at कि गाड़ी चलना शुरू हो जाए तो गाड़ी में चढ़ो. True. True. So that Fair. is why Fair. I look at RSI as a confirmation, not as a decision parameter. Okay. Does it answer your question?
Yeah, absolutely. Thanks. Okay, okay. Anyone else? I hope people are still there. I will stop sharing. So escape. Yeah, 7 of us are still here. So I will stop recording.